My guest for today, Fria Altaf. K as in Queen of Karachi. Yeah, well, मैंने नहीं रखा था. मेरे बेटे की एक दोस्त थी. She started calling me this. She said, you know, तुरहान, अगर तुम्हारी माँ ना होती ना तो इस शहर का क्या होना था. हम लोग जो जहाँ से निकल के आए हैं, कोश खाते थे, बेरीज खाते थे. हमने अनाज जानवरों के लिए बनाया था और फिर हमने खुद खाना शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं था कि ये हमारी बॉडी को सूट नहीं करता. पहला लक्स स्टाइल अवार्ड जब आपने डायरेक्ट किया, कौन सा साल था? 2002 February. And you started doing that. You started your own podcast. ये कैसे ख्याल आया? मुझे नहीं ख्याल है, मेरे बेटे को ख्याल है. सारा वक्त शोर मचाती रहती हैं कि ये गलत है, वो गलत हो रहा है, तो आप ये क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं. तो मैं हमेशा, मुझे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ना, मुझे बॉदर नहीं करती, बिकॉज मैं कहती हूँ जान है तो जहान है. You're also very vocal about a lot of social issues. इतनी अजियत है किसी के लिए, एक बच्ची के लिए जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है या बच्चे के लिए, उसको बुली किया जा रहा है स्कूल में. आपको डर होता है ना जवाब देने से, इसका मतलब है उसमें कोई गड़बड़ है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर. You're watching Speakeasy on 365 News. बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए because my guest for today in today's episode does not give interviews anymore. In fact, she takes the best interviews. She started her own podcast 2 years ago. और मेरी जिंदगी का सबसे truthful, authentic और सबसे लंबा इंटरव्यू इन्हीं के साथ था. और उसमें ऐसी ऐसी बातें मैंने कर ली जो शायद मैं दूसरे लोगों के सामने comfortable ना होती बोलते. Just watching women like Fria Altaf is just hugely inspiring. So say hello to my guest for today, Fria Altaf, the Queen of K. Oh my God, that was such an introduction. Queen of K as in Queen of Karachi. Yeah, well, मैंने नहीं रखा था. अच्छा ये नाम किसने रखा था? मेरे बच्चे, मेरे बेटे की एक दोस्त थी. हाँ. She started calling me this and she said, you know, तुरहान, अगर तुम्हारी माँ ना होती ना तो इस शहर का क्या होना था. So basically, By the way, yes. like, you know, just because it's fun. हाँ. You know, there's fun, there's activities, there's always events or PR, something or the other, parties going on. So I think that was the sort of, I loved it. And, you know, it's not self-proclaimed. But then, you know, हमारे culture में एक वो चीज़ है ना कि you have modesty and also, like somebody said to me, own it. Own it, यार. और फिर वो लिखना शुरू कर दिया, मीडिया ने पिकअप कर लिया, तो बस. Anyway, it's nice. It's nice, Queen of K, but it's Karachi. It's Karachi. It's Karachi. I guessed it, क्योंकि, but it's true, you are the Queen of Karachi. Oh, I know. अब अगली Queen बहुत कौन queens है. बनेगी? I mean, I'm always crowning people, some friends of mine who are always out there doing stuff, you know. So it's always encouragement बहुत ज़रूरी होती है, you know. Who would you crown right now as the Queen of Karachi? Right now, nobody, because there's कुछ हो ही नहीं रहा ना. अभी तो मेरे ख्याल में इस साल अभी I feel कि एक sort of comeback आ रहा है after COVID, floods, inflation, political unrest, you know. So I think Pakistan, not just Karachi, has gone through a lot. और अब जाके मुझे लग रहा है कि सब जागना शुरू हो गए हैं दोबारा से, you know, and चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से. Events होंगे, बहुत सारी चीजें. How exciting for you. Yeah, very exciting. Because you love that. I love that. I love it over here. I love it abroad. I love it everywhere. I know. अच्छा, abroad से याद आया, I believe you're shifting operations in other parts of the world also. I've already done it. You've done it? Done it. Where? So basically, I keep moving, you know, I mean, obviously between Dubai and here. And I'm also, I do a lot of trips. I think मैं थक गई थी पिछले साल 18 trips कर रही थी. I know, it's a lot. It's a lot. One person who travels more than me. Yeah, this is true. It's true. Yeah, but I'm also always traveling. हाँ, because एक वो restless soul होता है ना, जिसको वो travel करना होता है, उसको दुनिया देखनी होती है, लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करनी है. Yeah. I always tell my children, you know, okay, I feel like I'm more Gen Z than they are, because they still chill out. I'm not the chill out type. No, they're so I'm always on the move. I'm always bored. I'm always like social media. I'm always like, what's new? You know, what's the technology? Both of them have left. No, Turhan is here. He's working with me. Okay, Parisha's gone. And yeah, मगर वो तुम्हारी तरह है आयशा. I mean, वो एक बहुत हसास बच्ची है और उसको you know ये animal lover है and you know nature lover, सुकून चाहिए. वो she doesn't want to look over the shoulder कि कोई
we were देख रहा है। robbed also, yeah, at gunpoint once, Fashion Week के वक्त। तो वो बहुत उन चीज़ों से वो बहुत घबराती है। She wants freedom, कि वो मैं जो मर्जी करूँ, वो मैराथन्स भागती है, उसको इस तरह की चीज़ें पसंद है। मुझे कुछ लगता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा हम लोग ड्रामा भी करते हैं पाकिस्तान में especially। अच्छा। I think being a single woman abroad is difficult because वहाँ पे I was a single woman abroad। तो मुझे पता है कि मैं बैठे-बैठे से सोफे पे ना सो जाती थी बिकॉज सुबह जो मुझे उठना पड़ता था 7 बजे और फिर बच्चों को स्कूल लेके जाओ, ड्रॉप करो, फिर काम पे जाओ, काम से छुट्टी होती थी तो 6:30 बजे मैं उनको उठाती थी, इट वाज लेट। घर आती थी 7 बजे, खाना बनाती थी, फिर उनको टब में डालती थी नहलाने के लिए, फिर उनको किताब पढ़ के सुलाती थी और जब वो सो जाते थे बर्तन धोती थी जाके, और फिर जब मैं बैठती थी इस तरह 2 मिनट के लिए टीवी के सामने, आई वाज asleep। How many years were you there? I was there for 5 years. 5 years. Yeah, 5 years wow. in Canada. Yeah. And then moved back, of I course. moved back. And I think about moving back and moving now. And I think, Allah, मैंने कैसे किया? मैं सब कुछ बेच बाच के भी I had to fight for custody, तो मुझे lawyers के bills देने थे। मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेची, वो मैंने दे के आई। लॉयर का बिल, मैंने कहा मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि मैं किसी को पैसे वो करती हूँ। और फिर वो 6 सूटकेस उठाए और 19,000 रुपए बचे थे मेरे पास सिर्फ, और वो मैं लेके आई थी वापस। That's it. Was that the toughest time in your life, you would say? I think tough, वो साल मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि एक तो अब्बू की डेथ हुई थी, फिर इसका अलग ट्रॉमा, वो अलग ही एक आपका जो पिलर होता है ना फैमिली का। फिर उसके बाद मैं एक तो सिंगल हुई थी, so I was single, divorced with very small children। मैं बच्चे मेरे में 2 या 3 साल के थे, और फिर उसके बाद मेरे भाई को कैंसर हो गया उसी 1 महीने के बाद। तो इट वाज लाइक अम्मी भी चली गई उसके पास उसको देखने के लिए, तो एंड उसकी फिर डेथ भी हो गई। तो God, वो एक क्रेजी साल था, जबकि पैसे नहीं है, करियर दोबारा स्टार्ट करना है, हस्बैंड नहीं है, भाई नहीं है, बाप भी नहीं है, सडनली यू आर लुकिंग आफ्टर द फैमिली, और सब कुछ आपके ऊपर ही है, बच्चे भी डिपेंड कर रहे हैं, उनको अच्छे स्कूल्स में डालना है। इट वाज वेरी, तो मैं हमेशा, मुझे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ना वो मुझे बॉदर नहीं करती, बिकॉज मैं कहती हूँ जान है तो जहान है। जो आपकी फैमिली है ना, वो जो दुख है, वो जो ट्रॉमा है, वो उससे आप कोई भी कुछ भी नहीं है कुछ। अच्छा, पहला लक्स स्टाइल अवार्ड जब आपने डायरेक्ट किया अपना, कौन सा साल था? 2002 February. It was the coldest day in Karachi's history. Wow. Were you there? तुम थी? No. अच्छा। I came to Karachi in 2004. अच्छा हाँ, so पहला first one was in 2001 में initiate किया था, and then 2002 में January में 1 महीने में किया था। So you got the call from Unilever? No, I went to them with the concept. You went to? It was your concept. It was my idea. So basically जब मैं शकील साहब के लिए जियो पे काम कर रही थी, जियो स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें बहुत सारे शोज चाहिए, बहुत सारे आइडियाज चाहिए। एक आप लक्स स्टाइल की दुनिया वहां से शुरू किया। लक्स स्टाइल अवार्ड्स, लक्स स्टाइल की दुनिया 1993 में किया था मैंने। Oh my God. हाँ, so that was and that was not Jio, that was PTV। PTV था ही नहीं, कोई और चैनल था ही नहीं। That was PTV। So वो PTV पे था, मगर वो बहुत पहले था। तो I've been working with the brand since 1989. So that was my first show which Lux sponsored. So I think मैं लोगों के थे 37 ब्रांड मैनेजर्स से मैं गुजर चुकी हूँ लक्स के। And who is the best? Who is the best? Musharraf Hai. I said out loud. No, there were so many which were wonderful women. I'll tell you, they are still there. But she's amazing. She's amazing. She's a good friend. There's Shazia, who's amazing. There was Sabine. There was another lady who went to work for GSK. मैं उनका नाम भूल रही हूँ. She'll know when she watches this. But there were so many wonderful women over there that नाहिद के साथ पहले मैंने पहला। अच्छा, मैं सिर्फ मुशर्रफ है ही कोई जानती हूँ, वो सबसे warmest और सबसे I would say pleasant. She was a power woman. She was, very intellectually, creatively superior, and tough, very tough. So when you directed your first award show, which is Lux Style Awards, were you nervous कि अब ये concept मैंने create कर दिया, if I don't live up to my own expectation? हुआ ये था कि वो सारे concepts जो कि मैंने
जियो के साथ करने थे, I ended up doing myself as my own company because there's a lot of red tape, it takes time to do things, so वो हुए नहीं. So then I went to Musharraf was there and Nahid called me. उन्होंने कहा 1 महीने में कर दूँगी. मुझे तो पता ही नहीं था कि ABC नहीं पता ये करना कैसे है. Okay, और but I knew how to do events because मैं कर रही थी 1989 से. So 2002 was like I'd had so many years of experience. So I just decided कि जैसे मैं दूसरे करती हूँ वो कर लेती हूँ. Actually, creatively to date, I still think it was one of the best shows ever. The first one. The first one. Wow. Yeah, the first one because उसमें उस वक्त ना ये ड्रामे नहीं थे, सब लड़ नहीं रहे थे. Free flowing था. Free flowing था, कोई channels नहीं थे, तो कोई किसी से लड़ नहीं रहा था. अगर राहत फ़तेह अली भी था तो मैडम नूरजहां भी थी, और वो बहुत डिफरेंट था बिकॉज फॉर मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो स्टाइल का did not just come for television or film or fashion. It was architecture. It was because I think architecture bhi design style ko influence karta hai. It was also about social causes. So I think Adeeb Rizvi got the first Lux style humanitarian. बाद में हमने उसके बाद सिर्फ आसमा जहांगीर को दिया 2018 में. But उसके अंदर there were other awards. Art, इमरान कुरैशी को जानती हैं आप आर्टिस्ट को, एंड नाइजा खान. अब उस वक्त सोचो, अब आई एम टॉकिंग अबाउट 24 years ago. ओके, सो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो कि उस वक्त वो अब क्या हैं और उस वक्त क्या थे, बट दे गॉट द अवार्ड्स फॉर आर्ट. तो आई थिंक फॉर मी स्टाइल इज नॉट जस्ट fashion and also your work. It's not it wasn't for me, the concept was not for you paying people or giving them awards for their work. It was about stylishness. Okay, and who is like cool and aesthetics and style. I got the idea from VH1. They used to have a style awards and I saw कि JLo को भी दे रहे हैं और उसको, so I thought why not have something like this in Pakistan. There's no award show. There's no award show. No one is awarding you for your work, and fashion was big. Had come back and become very big. So it's been so many years. It's been so many years. I want to continue speaking about Lux Style Awards and comparing the beginning to now. But break ke baad. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी. मैं हूँ आयशा उमर और आज की एपिसोड में मेरी गेस्ट है फ्रिया अल्ताफ. यू आर the ultimate role model for, I think, Pakistani women. That's you really are. Thank you. Yeah. Achha, ye pants, you like these pants? I love these pants. This is my own brand. I think you need to अब तुम और बाहर निकल गए, तुम ऑनलाइन बेच रही हो. I stopped the brand for a few months. जब मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि आयशा मुझे कहती है कि I'm Wonder Woman and I'm multitasking, but this girl I can't keep up with you either. कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कभी creams, organic, and this. You do so much, Aisha. I do. It burns me out also sometimes. Yeah. Do you get burnouts? I do get burnout, but now in this burhapa, there is no burhapa. There is no burhapa, but it is true. कि आप अपने डिनाइल होते हो, आपकी एज आपके ऊपर कैच अप करती है. सो आई गेट स्पोर्ट्स नहीं है, वो स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है. मैं घड़ी को कह रही हूँ 90 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही कि आपकी एज पे इट वाजंट अलाउइंग ऑनेस्टली. एंड आई एक्चुअली गॉट अ स्पोर्ट्स इंजरी लास्ट ईयर सो बैडली बिकॉज मैं 3 घंटे एक्सरसाइज ओवरडू कर रही थी. 3 घंटे. ये 3 घंटे तो नहीं करना ना. It was stupid, but obsessive नहीं होना चाहिए. Obsessive नहीं होना चाहिए. So what are you doing for fitness? What's your fitness routine these days? Okay, so I think बच्चाs are very good. उन्होंने मुझे काफी, एक तो I got a trainer in 2022. I had put on so much weight. I was like 72 kilos. It's crazy. Okay. So I thought it was ridiculous. It's not too much. No, it's a lot. Okay. So I went on the gluten. I had the DNA test done. Acha. Yeah, and that was my daughter had done it, and then they came to me from Dubai, and they said we'll do it for free if you make a video for us. So I did the whole influencer thing, and उसमें पता चलता है आपकी 7 पुश्तों में क्या प्रॉब्लम थी, कि उनको डायबिटीज थी या उनको हार्ट प्रॉब्लम थी या कैंसर था या जो भी था. सो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट बिकॉज उसमें आपकी बॉडी, हर बॉडी डिफरेंट होती है. बिल्कुल. और आपको क्या सूट करता है. बाय फॉर एग्जांपल मेरी बेटी जो है ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री, यानी कि ना वो डेयरी, मिल्क,
कुछ भी नहीं. मेरी तरह है ना वो. हाँ, almond milk और Refined sugar free, dairy yes, free, gluten free. That's why I was bonding with her in your kitchen. Exactly. हाँ. So वो उसने मुझे भी लगा दिया. So I've got all the gluten free stuff and salads, lots of salads, lots of good vitamins obviously, and just trying to be, you know, eat the right protein also, but also ये भी देखना पड़ता है देसी अंडे, कौन सी चिकन, ये हम लोग नहीं सोचते, डब्बे का सामान नहीं खाना, you know, talking my talk, talking your talk, because ये lifestyle हमें नहीं सिखाया जाता. ये एनर्जी फिर यहीं से तो आती है, जो कहते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है भाई, अब अच्छा खाओगे तो. और पता है आपकी बॉडी भी नहीं बनी, हम लोगों को पता नहीं पाकिस्तान में कि हम लोग एवोल्यूशन हमारी अभी हुई नहीं है हमारी बॉडी की. हम लोग जो जहाँ से निकल के आए हैं, कोश खाते थे, बेरीज खाते थे, दरख्तों से हमने अनाज जानवरों के लिए बनाया था और फिर हमने खुद खाना शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं था कि ये हमारी बॉडी को सूट नहीं करता. तो जब लोग फील करते हैं कि हम ब्लोट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है, फूला हुआ है शक्ल, तो उनको पता ही नहीं है कि रोटी, बाजरे की रोटी खाओ. भाई पंजाब में तो 100 साल पहले गंदम आई है, उससे पहले तो सब बाजरा खाते थे. एग्जैक्टली. और मकई खाओ. और अब सब गंदम खा रहे हैं और उनको लग रहा है कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं हम, सब गलत. सफेद, और वो भी सफेद चावल, सफेद सब कुछ. नो भाई, जो नेचुरली आपकी शुगर भी ब्राउन है, आपका गंदम भी ब्राउन है, आपकी यू नो हम उसके अंदर वो रंग डाल के अजीब अजीब चीजें करके रिफाइन करते हैं, खराब करते हैं. हाँ. अच्छा, so how did your children become so soft spoken? दोनों. Because मुझे नहीं पसंद था. Actually मेरे घर में my father was very strict and mummy was very soft, always very soft spoken, very gentle soul जिसको कहते हैं. So Abu was like that, and so one of the things मैंने जो घर में कह दिया था कि मेरे घर में कभी कोई गाली नहीं देगा और ये मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगी. So तमीज़ जो थी वो फिर एक हर जनरेशन जो होती है ना वो अलग होती है. हम अपने माँ बाप को कभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उधर से सीखा है और वो वहाँ से आए हैं, फिर वो आपको सिखाते हैं और आपको अपने बच्चों को सिखाना होता है. हमारे बच्चे हमें सिखाएंगे. सिर्फ ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम माँ बाप ज़्यादातर बच्चों की सुनते ही नहीं. मैं सुनती हूँ. आप तो सुनती हैं. मैं सुनती बच्चों की. मैं सब यंग लोगों की सुनती हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स उनको पता होता है. कुछ हमें पता होता है, हमारी विजडम होती है जो कि ईयर्स की होती है, बट बच्चों को बहुत कुछ पता होता है. जो उस दिन मैं कोई एक देख रही थी किसी का इंटरव्यू एंड दे सेड कि द जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिस इमोशन की, दैट इज नॉट लव, ऑथेंटिसिटी. जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. इमेजिन. और जो आप नहीं हो रहे होते ऑथेंटिक, व्हेन यू कांट बी योरसेल्फ, फेक हो रहे होते हैं. हाउ सैड. नहीं, बिल्कुल सही बात है. लिव देयर एंटायर लाइव्स लाइक दैट. नहीं, और बिकॉज़ हमें सिखाया भी तो जाता है ना टू बी, इस तरह बोलो, इस तरह बैठो, दूसरे, एंड दैट्स व्हाई दुनिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है इतना ज्यादा. मैं हमेशा से लड़ रही है जब से इंसान पैदा हुआ है आई थिंक. लेकिन ये है कि आइडेंटिटी एक और बंदे की इतनी खूबसूरत चीज़ है कि दूसरा इंसान आपसे मुख्तलिफ है. वो डिफरेंटली रहता है, वो डिफरेंटली खाता है, वो डिफरेंटली पहनता है. आप उसकी इज्जत नहीं करते. आपको उसकी इज्जत करनी है, आपको उससे सीखना है और वो आपसे सीखे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट वी हैव सो मेनी डिफरेंट. डाइवर्सिटी इतनी है और इंक्लूजन, आपको इंक्लूजन नहीं है. और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है. कोई आपसे मुख्तलिफ हो जाता है वो आपको इनसिक्योर कर देता है. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. You know, and that confidence will make you as an actor, better actor, doctor, better. I think confidence is for anybody to succeed. Self-esteem in their profession, you know, be that true self. But as a nation, हमारी self-esteem बहुत low है, बहुत ज़्यादा. फिर और दुनिया के सामने जो हमारा इमेज है उससे और हमारी self-esteem low होती जा रही है. और होती है. एक वो आती है, वो औरत, क्या नाम था उसका? So what was her name? The woman who just came from America and wanted to marry that guy. Onaisha ने पाकिस्तान की PR इधर से उधर ले गई. मेरी दोस्त, गोरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, बेस्ट PR for us. ये पाकिस्तान है. This is what Pakistan is like. We would like to come here. I was like, please come, because she should be hired to. I mean, what the government couldn't do, this one woman. Soft image of Pakistan. And but that's authentic Pakistan. जो आप कह रहे हो, real Pakistan तो ये है. We are very good
hosts. वो तो हमारे बारे में दुनिया जानती है. But हमारी बदकिस्मती भी है कि हमारे leadership बहुत has been main thing is कि आपको एक अच्छा leader मिल जाए, authentic leader मिल जाए, honest leader मिल जाए और ये एजुकेशन आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा. एजुकेशन ही तो है नंबर 1 चीज, सब कुछ सही होगा. Exactly. अच्छा, I want to go back to when you started and when you were in school and college and you started modeling at 18. No, not 18. No way. Really? No, I think I was 19 when I went to college. और मेरे नहीं, for fun. For fun, हाँ. Not professionally. For fun, हाँ. In college, you were like doing fun stuff. College में तो I just went to New York. I had a friend जो कि FIT में था, Fashion Institute of New York. And he said, okay, student show है, can you please model? So I went and did the whole rehearsal. Amazing. और वो choreographer ने मुझे कहा, इतने लंबे बाल थे, ऐसे करना बालों के साथ, ऐसे करना. मैंने कहा, अच्छा ठीक है. यकीन करो, मेरी जान निकल गई, मैं गई नहीं. शो पे ही नहीं गई रिहर्सल करके बाद. Because I was so like I wasn't. I guess मेरी उतना confidence नहीं था उस वक्त. I didn't do it. वो तो फिर जब मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान कॉलेज से at about 22, तो my sister was doing it, my brother-in-law was doing it, and somebody asked me, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, क्या है इसमें. हाँ. So that's वो भी शुगल के लिए यार, पैसे Friends तो के साथ बिल्कुल. हाँ, पैसे तो एक हेरल्ड मैगजीन एक होता, 2 मैगजीन, ची मैगजीन, मैग मैगजीन, विजाज बाद में आया. विजाज का पहला कवर मैंने किया था. हाँ, I know. विजाज का भी. बट उस जमाने में इतने गंदे ऐड बनते थे, इतने फजूल, और आप एक ऐड करते थे वो 5 साल तक चल रहा होता था. आपकी शक्ल बदल गई होती थी, कैमरे बदल गए होते थे, लेकिन वो एक गंदा ऐड चल रहा होता था. ओके. और वो बिलबोर्ड भी 10 साल लगा होता था. वो लगा होता, बिलबोर्ड तो था ही नहीं था भाई, वो पेंट करते थे. मैंने जब पहले आई वाज द फर्स्ट सनसिल्क मॉडल, फर्स्ट. तो पहली बार मैंने अपने आप को देखा ना बिलबोर्ड पे. ओके. और वो पूरा वो फ्लेक्स का बिलबोर्ड आया था पहला, पेंटेड नहीं था. तो मैंने कहा यार, और फिर इतने लोगों ने आके वो सुनाई मुझे बातें, बहुत बिकॉज उस वक्त बहुत अजीब माहौल था. और मॉडलिंग में भी जैसे हर शोबे में होते हैं, हर किस्म की लड़कियां, तो एजुकेटेड लड़कियां अगर 6 मिल जाए ना आपको तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त. और अब तो खैर तो बहुत है. They're all very smart. हाँ, मगर वो ही होता था उस जमाने में. गुड फैमिली, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात, गुड फैमिली बैड फैमिली, कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी गुड है. गुड फैमिली उस जमाने में का मतलब था कि जी कोई एलीट फैमिली की लड़की हो या एजुकेटेड फैमिली की लड़की हो, उसका मतलब ये था उस वक्त. तो इट वाज लाइक क्रेजी. और दिल दुखता था आपका कि भाई यार कुछ भी नहीं कर रहे, मजा भी आ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े खूबसूरत पहन के, खूबसूरत मेकअप होके, यू आर वॉकिंग द रैम्प. ये बिल्कुल शुरुआत थी फैशन की. सो और सब मिल गए थे एक साथ उस टाइम पे. देयर वाज मी, अतिया, अनीता यूब, और उसकी बहन थी. फिर बस सेडी आई थी. फिर वो एक जनरेशन थी. उसके बाद फिर बीबी और आलिया जैदी और विनी और एरज, वो फिर एक डिफरेंट एरा था. फिर उसके बाद वो सुनीता, ZQ. कल परसों मिले थे ना, तो वो हम लोग यही कह रहे थे, सबसे ज्यादा मजे तुम्हारे साथ किए, पूरी दुनिया में हम लोग घूमे हैं. मैंने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे जमाने थे, बहुत अच्छे जमाने थे, बिकॉज वी वर ब्रेकिंग दोज बैरियर्स एंड मूविंग एंड फाइटिंग द सिस्टम. ब्रेकिंग बैरियर्स से याद आया, ब्रेक लेनी है. break up. एक और ब्रेक लेनी है and we are coming right back. Very good host. Welcome back to Speakeasy. मैं हूँ आयशा उमर और ये मैंने एक बहुत फेक ओपनिंग की थी. कोई बात नहीं. Because we were talking about fakeness. Could you tell that this was fake? नहीं, it wasn't fake. It's just part of the job. I know. Because तुमने वो बड़ी अच्छी बात पकड़ी ब्रेक पे, तो तुमने ब्रेक ले ली. I think that's a good host. उसको पता होता है कि क्या करना है. Thank you. ये आसान काम नहीं है. लोग समझते हैं कि बड़ा आसान काम है. It's not easy. And you started doing that. You started your own podcast. ये कैसे ख्याल आया? मुझे नहीं ख्याल है, मेरे बेटे को ख्याल आया. बेटे ने कहा. वो बहुत एक्टिविस्ट हैं, सारा वक्त शोर मचाती रहती हैं कि ये गलत है, वो गलत हो रहा है, तो आप ये क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं. एंड बिकॉज कोविड का टाइम था और वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, तो उसने अपने
चलाकियों में वो फ्लड्स आए थे, याद है, सारी बारिशें, सारा बेसमेंट खराब हो गया, बेसमेंट सारे ही भर गए थे पानी तो फिर से। वो उसने अजान से पूछ के पूरा वो फिर पैडिंग वैडिंग करवाई और पूरा उसने वो इट्स एज बिग एज दिस रूम, तो वो पूरा वो उसने बना दिया और फिर उसने कहा अब यहाँ पॉडकास्ट स्टार्ट करें, तो उसने सब कुछ किया, आई मीन ब्रांडिंग से लेके कितना अच्छा किया शूटिंग उसने। से, Wow, and the editing and everything and the clips, जिस तरह वो वो जाती सब हैं। कुछ उसने किया, मैंने क्या कुछ नहीं बात किया, है। मैं तो सिर्फ आती हूँ, But you were hosting it, Priya. hosting, so I do the research and I work with who I want on it, but basically research, I really enjoy the podcast. Yeah, it looks like it. I do. And your guests also enjoy it. I think so. I think it's authenticity की हम अभी बात कर रहे थे। मैं ये भी देख रही थी कि चीजें निकाल लेते हैं, एक बात आपने की और वो किसी Edit कर और के दिया साथ बाद में, जोड़ हाँ। दी और वायरल होने के लिए खराब कर दिया। सेलिब्रिटी हो, आई मीन नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज जो कि मेरे शो पे आते हैं, पब्लिक फिगर्स भी होते हैं एंड सोशल वर्कर्स भी होते हैं, सो आई थिंक उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो इतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जो बंदा बैठा हुआ देख रहा है उसके ऊपर भी गुजरी होगी कोई ना कोई चीज़, और हम सब इंसान हैं, हमने गलतियाँ भी की हैं, हमने अच्छे काम भी किए हैं, हम पे अजियतें भी गुजरी हैं, तो आप जब जो सीख रहे होते हो उस चीज़ से, तो वो जब आप तो शेयर नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क में क्या है, सीक्रेट नहीं बताना, उसको ना पता चले, फला को ना पता रहे, इज्जत की बात है, ये है वो है, बकवास ना कटेगी, ये होगा। So basically shoving things under the rug. अम्मी ने मुझे पूछते हैं लोग FY क्यों रखा है ना, तो मैंने कहा भाई F was for फ्रीहा और फिर it can be for a lot of different things which I cannot say, फिर बीप हो जाएगा, तो Y का मतलब है क्यों, और क्यों का मतलब है, अम्मी मुझे कहती थी, जब मैं कहती थी ये ऐसा क्यों है, तो कहती थी क्यों का मतलब लड़ाई। माय मदर यूज्ड टू से क्यों का मतलब लड़ाई, ये नहीं करना, और ये हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर घुसाया हुआ है। ओके, पेरेंट्स कहते हैं नहीं पूछो, ना पूछो, और जब आप बाहर जाके पढ़ते हो तो लोग कहते हैं पूछो ही पूछो, हर चीज का सवाल करो, और जब आपको डर होता है ना जवाब देने से, इसका मतलब है उसमें कोई गड़बड़ है, बिकॉज हर चीज का एक जवाब है, गुड और बैड, उसका जरूर कोई रीजन है, और रीजन कभी कभी हम बुरे काम भी अगर करते हैं तो उसका भी कुछ, उसके पीछे कुछ होता है, shame और guilt और ट्रॉमा या कुछ देखा होता है या कुछ हुआ होता है, और फिर हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, और जब हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं तो हमें समझ आती है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। Who was your favorite guest in the 40 episodes that you've done? Come on, Priya. Oh, I cannot say this. Okay, top 3. But I mean, मुझे जो शौक, जो I'll tell you कि जिसको तो बहुत सारी कहानियाँ आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करना है कि यू नो वी वांट रियल स्टोरीज, वी वांट रियल पीपल, एंड वी वांट पीपल टू नो कि ये खातून कहाँ से आई है, जिसको आप देखते हो सर कि शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, वो पता नहीं 57 सैलून्स चला रही हैं, बिजनेस चला रही हैं, किससे कहाँ से गुजर के आई हैं, और फिर वो औरतों को हेल्प करती है, एसिड विक्टिम्स को, यू नो, उनको रिहेबिलिटेट करती। This is amazing. Yeah. We have people like that. Yeah. You know, so I think there's so many people like that. I can't even remember half the things. You're also very vocal about a lot of social issues and child abuse पे आपने बहुत काम किया है. Is there a personal like you're personally drawn to speaking up about it and because creating awareness it. about it? At 6 years of age. Yeah. तो जब और उस वक्त से आपको चुप कराया हुआ था, तो चुप करा के आपको बोला है कि आपने बोलना ही नहीं है। मैं इसीलिए कहती हूँ बोलो, आपको चुप कराया हुआ है, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, और माँ बाप बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं आपको, या आपका जो मदरसे में आपकी पिटाई हो रही है, या वायलेंस तो बहुत, एनी काइंड ऑफ अब्यूज, तो वो चीज़ आपको जो है ना अंदर से खा भी जाती है। आप कभी कभी यू गो ऑन, यू सिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक कि अगर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, देखिए कितनी अजियत है किसी के लिए, एक बच्ची के लिए जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है, या बच्चे के लिए उसको बुली किया जा रहा है स्कूल में, और आप उसको शेम कर रहे हो, या आप किसी को कह रहे हो कि तू काला है, या यू नो, या आपकी कोई स्किन डिजीज है तो आपको कहा जा रहा है योर पॉट फेस। ये कितनी क्रूल बातें हैं,
you know, और और हम ये हमारी नॉर्मलाइज हुई थी सोसाइटी में, मजाक हो रहा है लोगों के वेट हाँ पे, जी, बिल्कुल। you know, and खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू द रंग ड्रामास। सूरत, हाइट, हाँ, स्कूल, जी कॉन्वेंट की लड़की चाहिए और वेट और वो हर सब चीज़। का जी बिल्कुल, बहुत हाँ। ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो लड़की। और अब क्वेश्चन कर रही है यंग जनरेशन। अच्छा, कुछ लोग ये स्कूल ऑफ थॉट के हैं इन योर जनरेशन, माय जनरेशन, और हमसे जो ओल्डर जनरेशन है, लाइक मेरी अम्मी की या आपकी अम्मी की, कि ओ आजकल जो अब जेनजी है और ये बच्चे हैं बहुत बदतमीज हो गए हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत जवाब देते हैं। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। They are not going to tolerate what we tolerated. What is your take on it? आई थिंक वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। हम लोग जो थे, हमें सिखाया गया था बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, प्रॉपर्टीज जमा करनी है, गाड़ियाँ होनी चाहिए अच्छी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। उनकी सोच है कि जो गलत है उसको सामने लेके आओ, क्वेश्चन करो, और आप इस तरह से ना ग्रीडी लाइफ नहीं जियो। आप काम करो तो आप उसको फिर एक महीना जाके एंजॉय करो, तिब्बत चले जाओ, नेपाल चले जाओ। होर्डर्स नहीं है, वो नहीं है उनको, वो नहीं Fear है, नहीं है वो नहीं, वो कपड़े दे देते हैं, वो रखते ही नहीं है चीजें, वो दे देते हैं। उनको लेबल्स का शौक नहीं है, और उनको ज्यादा काम भी नहीं करना, उनको काम भी नहीं करना, उन्हें दिन में 3 या 4 घंटे काम करना है। स्मार्ट मनी चाहिए। हाँ, स्मार्ट मनी, क्योंकि हमें अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल करना है। So how are they wrong? How are they wrong? They are not wrong. They're not wrong. I think we मुझे सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे We हैं। were hustling on our lives. Yeah, I don't, I think अगर अब मैं वही देख रही हूँ ऑफिस के अंदर AI आ गया है, तो वो जो सारे जो मैं कहती हूँ यार तुम खुद लोग क्यों नहीं बना रहे हो, तुम AI पे डिपेंड कर रहे हो, बिकॉज उनको ईजी है। मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं तो उठा के दम, कभी कभी मेरा दिल चाहता है दो मारूं उठा के एंग्जाइटी। एक ये मुझे तो पता भी नहीं था ये वर्ड क्या है। हाँ, जब तक तुम लोग पैदा नहीं हुए, Entitled ना। हम तो पता नहीं कितनी एंग्जाइटी से गुजर चुके हैं आयशा। Anxiety. मगर मुझे ये डर भी लगता है कि ये कुछ किसी चीज से गुजर नहीं पाएंगे। entitled और anxiety? एंग्जाइटी, Anxiety. एंटाइटल तो है। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि अगर इन पे कोई क़यामत, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, या खुदा ना खास्ता यू नो कि इनके साथ ये चीजें हुई, तो ये लोग कैसे हैंडल करेंगे? या उनकी प्लानिंग नहीं है, वो बस उठते हैं चले जाते हैं बस। तो उन्होंने दुनिया क्या देखी है जो कोविड में उन्होंने देखा है, जिसमें कोई दूसरे दिन का आपको पता नहीं था। They've grown up in a world where there is no, it's chaos. It's just chaos. So I think they feel like we want to live for the moment. Well, I think now I want to live for the moment, because मैंने बहुत मेहनत कर ली, but I think a bit of the Gen Z तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है, because हम लोग वो लोग सुस्त लोग नहीं हैं, we are with the times and we like to be, you know, we want also to learn from them. So I'm very open to, I like young people, I surround myself with them. Yeah, you have a lot of young people working with you. Yeah, I like young people, I like new ideas, I like to listen. You know, I like to say, and then when I'm told कि ये गलत है, तो मैं कहती हूँ okay, maybe I'm wrong. And then when I see things which are happening, मैं कहती हूँ we are wrong. What next? What's coming up? More traveling. Always say this, more traveling. I think you should direct a film. Yeah, everyone says that. Yeah. I think एक है मेरे दिमाग में। हाँ, लिखा भी Produce हुआ and है। direct करें आप। एक किताब भी है, बट किताब I was thinking more digital now. कोई नहीं किताब पढ़ता, मैं पढ़ती हूँ सिर्फ old, मैं अखबार भी पढ़ती हूँ। I love it. Wow. I love reading, so I can't stop reading. But I love movie theaters, all of this. And I think it'll be very interesting. We will get Priya again on the show when you have directed your first film. I am telling you, और मैं एक और फिल्म करने जा रही हूँ, and I would want you to do the PR for that as well, inshallah. Yeah. Inshallah. और फिर हम मिलेंगे. And good luck, by the way, on the Luxies for your acting, and for next year for the next 24 one. Fingers crossed. Inshallah. और हम मिलेंगे अगली एपिसोड में. Yeah. खुदा हाफिज. Hafiz.